Dear students, in this video I will explain electric energy. But before explaining electric energy, I will give brief description of energy. So मैं let's हूँ start with मोटा energy. भाई। मैं आपको एनर्जी पढ़ाऊंगा। नहीं पढ़ाने दूंगा, नहीं पढ़ाने दूंगा। चुप कर खुजली बाल, मोदी समझ रखा है क्या? पप्पू, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? मम्मी से पूछ के बताऊंगा। कद्दू, अब तू बता क्या होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी? ओ जी बल्ले बल्ले, मैं तो पाकिस्तान जाके पता करूंगा क्या होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। फिजिक्स ऑफ बाय रजनीश सक्सेना चैनल देखो जाकर, सारे जवाब मिलेंगे। साथ ही सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलना। What is energy? Ability to do work is called energy. Very short definition and correct definition. Now, what is its meaning? इसका मतलब क्या है? Let me explain. Here you can see a farmer is plowing in their field. Students moving with their a weightlifter lifting weight. In the language of physics, all are doing work. Work means physical work, not mental work like your homework. So we can say ability to do work is referred as energy. Means वर्क करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं. Now next is our law of conservation of energy. According to this law, energy can neither be created nor destroy. It changes its form. इसका मतलब ये है, ना हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी हीटर में दी तो हीट एनर्जी में चेंज हो गई. CFL में दी, LED में दी तो लाइट एनर्जी में चेंज हो गई. लाइट एनर्जी से फिर हीट एनर्जी. तो इन दिस वे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन चलता है, बट ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय. Here you can see conversion of electrical energy into various type of energy. See, electric energy converted into heat energy by electric heater, electric energy converted into chemical energy by battery, electric energy converted into light energy by CFL or LED, electric energy converted into sound energy by your sound system or music system, electric energy converted into mechanical energy by your motor pump and also fan. So in this way, I have shown electric energy conversion into different type of energy. Now see the relation between work and energy and power. Now see the relationship between work and energy. You can see cycle between work and energy. It means if you have energy, you can do work, or if you are doing work, you must have energy. इसका मतलब ये है, अगर आपके पास एनर्जी है तभी आप वर्क कर सकते हो, और अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपके पास एनर्जी है. Both having same unit, work and energy measured in joule. Now see the relationship between energy and power. I already explained in my previous video, power is equal to work done upon time. And now already shown that work done is nothing, it is energy form. Then I replace work done by energy. So in place of W upon T, you can write E upon T, where E is the energy and T is the time taken. So by mathematics, we can write E is equal to P into T. खुजली बाल, डिफाइन एनर्जी। Energy is the ability to do work. कद्दू, यूनिट ऑफ एनर्जी। ओ जी बल्ले बल्ले, जूल होती है जी, जूल। पप्पू माय स्मार्ट बॉय, अब तुम बताओ वर्क क्या होता है? मम्मी से पूछ के बताऊंगा। तेरा कुछ नहीं हो सकता पप्पू। इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसमिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम पावर कहते हैं, जो हमारे घर तक पहुंचती है, इसका यूज हम लाइट्स के लिए करते हैं, घर में अपनी म्यूजिक सिस्टम में यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन, फैन, रेफ्रिजरेटर, डिफरेंट टाइप के होम अप्लायंसेज में यूज करते हैं. हम लोग ने अभी तक देखा था कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था पावर इनटू टाइम का था, तो हमने ऐसा लिखा था E इज इक्वल टू P इंटू टी.
So we can say that electric energy is the product of power rating and multiplied with time. हम कह सकते हैं E is equal to P into T, इन दोनों का प्रोडक्ट है. Now अब आपके पास एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, उसमें पूछा जा सकता है ऑन विच फैक्टर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड डिपेंड्स. इसका मतलब ये है कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम कंज्यूम करते हैं डिपेंड करती है. तो इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं, क्लियर होगा. मैंने एक एलईडी ली 10 वॉट, उसकी पावर रेटिंग है, और उसको आप यूज कर रहे हो घर में नाइट टाइम में 5 आवर्स के लिए. तो अब मैं जब एलईडी यूज की जा रही है 5 आवर्स के लिए, तो आपको फाइंड आउट करना है कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की. तो उसके लिए आपका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो पावर मल्टीप्लाइड विद टाइम. तो आपके पास एलईडी कितनी है, 10 वॉट की. तो 10 वॉट में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 आवर को, तो आपके पास कितना आएगा, 10 इंटू 5 50. और पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट. तो वाट, और टाइम की यूनिट क्या होती है, आवर. तो वो भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या है, 50 वॉट आवर. तो वो आपका एलईडी 50 वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी. अब हमने उस एलईडी की जगह CFL यूज किया. CFL 20 वॉट का है, और वो भी 5 आवर के लिए ही यूज किया जा रहा है. सी टाइम दोनों के लिए सेम है, लेकिन क्या है, वाट यहाँ पे डिफरेंस है. इसमें 10 वॉट है, इसमें 20 वॉट है. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इस केस में कितनी होगी, अगेन पावर मल्टीप्लाइड विद टाइम, दैट इज 100 वॉट आवर. नाउ सी, फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन कितना आया था, 50 वॉट आवर. सेकेंड केस में कितना आ गया, 100 वॉट आवर. क्या टाइम चेंज हो रहा है, नहीं, चेंज क्या हो रहा है, वॉट. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन किस पे डिपेंड करती है, पावर रेटिंग पे. हमने ये प्रूव कर दिया. नाउ अब हम सेकंड केस कंसीडर करते हैं. नाउ इन अबव आई विल चेंज टाइम से 6 आवर. तो मैंने क्या किया, इस 5 आवर की जगह 6 आवर कर दिया. अब जब 5 आवर की जगह 6 आवर कर दिया, तो अब देखते क्या इम्पैक्ट पड़ता है. कि मीन्स आप घर में जो यूज कर रहे हो 5 आवर की जगह 6 आवर यूज करना शुरू कर दिया अब आपने. तो अब इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, एलईडी की हमारी पावर थी 10 वॉट, तो 10 वॉट ही ली. लेकिन टाइम यहाँ पे 5 की जगह क्या कर दिया, 6. तो आपके पास कितना हो गया, टोटल 60 वॉट आवर. नाउ दिस इज 60 वॉट आवर. एंड अगेन फॉर द CFL the power is 20 watt, and 20 multiplied to 6, that is 120 watt hour. Now see the difference between power consumption. Here in first case it was 50 watt hour, now 60 watt hour. Here for the CFL it is 100 watt hour, now 120 watt hour. तो हमारे पास हमने चेंज क्या किया, हमने चेंज टाइम किया, ड्यूरेशन बढ़ा दी यूज करने की. जहां आप 5 घंटे यूज कर रहे थे, आप 6 घंटे यूज कर रहे हो. तो आपने क्या देखा, आपका पावर जो थी जो सेम है, लेकिन आपका एनर्जी कंजप्शन बढ़ गया. इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड वो आपके पास क्या आ गई, बढ़ गई. तो इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे भी. तो हमारे पास दीज आर द टू फैक्टर, वन इज पावर रेटिंग, सेकेंड इज टाइम ऑन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड डिपेंड्स. दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, ऑन विच फैक्टर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम डिपेंड्स, किस फैक्टर्स पे डिपेंड होती है. तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया. तो उसमें हमने क्या देखा, पावर रेटिंग, और दूसरा क्या था, टाइम ड्यूरेशन. द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम डिपेंड्स ऑन पावर रेटिंग ऑफ द डिवाइस एंड टाइम ड्यूरेशन. तो अगर हमारे पास पावर रेटिंग किसी डिवाइस की हाई है, तो वो हाई इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा. और एज वेल एज अगर आप उसे लार्ज टाइम के लिए यूज कर रहे हो, तब भी वो आपकी हाई इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा. वाइस वर्सा, अगर आपके पावर रेटिंग डिवाइस की कम है, तो वो लो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा. और उसे कम टाइम ड्यूरेशन के लिए भी यूज कर रहे हो, तो भी वो क्या करेगा, आपके पास लेस इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा. तो ये आपके पास डिस्क्रिप्शन था कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड जो होती है किस फैक्टर्स पर डिपेंड होती है. आई होप क्लियर हो गया होगा. और आपके इंटरेस्ट के लिए बता दूं, ये जो वॉट यूनिट दी गई है, ये हमारे एक साइंटिस्ट थे जेम्स वॉट, उनके ऑनर में ये पावर की यूनिट वॉट दी गई है.
We know that E is equal to P into T, and the unit of measurement of power is watt, and for the time I have taken hour. Now here watt and hour, and in between them that is multiplication. So after multiplication we will got watt hour. Now I have written 1 in front of W and in front of H. W stands for watt and H stands for hour. Is there any impact if I multiplied with 1? No, there is no impact. So 1 into 1 again multiplied gives 1, means 1 watt hour. Unit of इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, उसकी हमने यूनिट फाइंड आउट कर ली. तो हम 1 वाट आवर को डिफाइन करेंगे. तो हमने क्या देखा, जब 1 वाट हमने 1 आवर में कंज्यूम किया तो उसको हम लोग ने क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन, दैट इज इक्वल टू 1 वाट आवर. सो 1 watt hour is the amount of electric energy consumed by appliance of 1 watt used for 1 hour. For example, आप इसको ऐसा समझ सकते हो डेफिनेशन को, आपके पास 1 watt की एलईडी है और उसको आपने 1 घंटे यूज किया, तो जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन होगा जो टोटल, वो कितना होगा, 1 watt hour, क्योंकि 1 watt की एलईडी 1 घंटे यूज किया तो 1 watt hour आपकी वो LED इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर. द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, आपके घर में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन का जो बिल आता है वो बिल किलोवाट आवर में आता है, और इस किलोवाट आवर को ही हम रेफर करते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. नाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, व्हाट इज द नीड ऑफ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, that is kilowatt hour, while watt hour is already available. Means kilowatt hour की क्या जरूरत पड़ी, जबकि watt hour तो हमारे पास ऑलरेडी है मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था. तो उसका एक्सप्लेनेशन में कुछ इस तरह से आपको बता रहा हूँ. आपके स्कूल कैंपस में और यू कैन से आपके क्लासरूम में, पूरे क्लासरूम में पोटैटो भरे पड़े हैं, और आपसे कहा जाए आपको केवल 1 ग्राम का बाट यूज करके सारे को तोलना है, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि पोटैटो की क्वांटिटी बहुत लार्ज है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप केजी का वाट लोगे या फिर क्विंटल 100 किलो का वाट लोगे, और आप उसे आराम से मेजर कर सकते हो, तोल सकते हो कितना है. तो कहने का कॉन्सेप्ट ये है, जब आपके पास क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसको आपको मेजर करनी ह्यूज अमाउंट में है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, बड़ी यूनिट. तो सिमिलरली यहां पर किलो वाट आवर ये बिगर यूनिट है वाट आवर की. यहां पे आप देखें क्या है, किलो, किलो स्टैंड्स फॉर 1000, तो इसको हम कह सकते हैं 1000 वाट आवर. तो इसकी नीड हमें इसलिए पड़ी टू मेजर ह्यूज अमाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. वी कैन मेजर इट बाय किलोवाट आवर. द डेफिनेशन ऑफ 1 किलोवाट आवर. 1 kilowatt hour is the amount of electric energy consumed by an appliance of power rating 1 kW used for 1 hour. होता है क्या है ये 1 किलोवाट आवर, हम कहेंगे जब कोई आपका इलेक्ट्रिक एप्लियंस 1 kW का रेटिंग हो, उस पे पावर रेटिंग, और वो 1 आवर के लिए यूज किया जा रहा हो, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन होगा वो कितना होगा, 1 किलोवाट आवर. मींस आपने 1 किलोवाट आवर का कोई हीटर 1 घंटे के लिए यूज कर लिया, तो हम उसको कहेंगे कि आपने जो एनर्जी कंज्यूम की है वो 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर ली है. और दूसरे वर्ड में हम इसे ऐसा कह सकते हैं, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वाट. तो अगर आपने 1000 वाट का हीटर 1 घंटे यूज किया, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन होगा वो क्या होगा, 1 किलोवाट आवर. आई होप क्लियर होगा. एंड दिस किलोवाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. और ये लिखने का ढंग भी ये है, के कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल एंड एच इज स्मॉल. तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट का एक्सप्लेनेशन था. और यही आपको मैं इलेक्ट्रिक मीटर पे आपको लिखा हुआ दिखाऊंगा. अभी जस्ट इसके बाद ही आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि सारा किलोवाट आवर और ये जो डिटेल्स होती हैं आपकी
वो आपकी इलेक्ट्रिक मीटर पे सारी कुछ अवेलेबल होती हैं, और जो आपके घर के बाहर लगा होता है मेजर करने के लिए। और एक वीडियो मैं इस पे भी बनाऊंगा कि इलेक्ट्रिक मीटर की आपकी रीडिंग बढ़ क्यों जाती है गर्मी के दिनों में। हमें ऐसा लगता है कि वो हम कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, लेकिन कुछ और भी रीजन होते हैं। तो ये भी बताऊंगा कि आपकी रीडिंग कम कैसे आए और इलेक्ट्रिक मीटर को कहाँ लगाना चाहिए। हाँ तो बच्चों, ये है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर। इस तरह से हर चीज़ फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें स्केल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा मीटर है जो हम मेज़र करता है कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की। ऊपर आप देखो, जहाँ मैं फिंगर दिखा रहा हूँ, किलोवाट आवर लिखा हुआ है। 1 फेज 240 वोल्ट, ये सारी रेटिंग दे रखी है। और आप इनसाइड भी देखो, जहाँ आपके पास 422 लिखा हुआ है, उसके नीचे आप देखो किलोवाट आवर लिखा हुआ है। तो ये आपका एनर्जी मीटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर आपका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर करने के लिए, कितना कंजप्शन आपने किया। देखिए आपका मीटर, जिसको देख के आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी का बिल आता है। इस पे भी आप देखो, आपका इसमें लिखा हुआ होगा, ये जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड का मीटर है। और आप देखें यहाँ पर, इसमें भी किलोवाट आवर आपको शो होकर दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर, आप देख सकते हो। तो देखना ही को एक बार फिर से आप कोशिश करें और इसको देखें फिर से। देखिए ये किलोवाट आवर आपके सामने आया है 30 एम्पियर के ऊपर। 5 से 30 एम्पियर इसमें करंट की कैपेसिटी है और उस पर आपके पास दे रखा है। By the help of these energy meter, we can calculate electric energy consumed in kilowatt hour. Now see the relationship between kilowatt hour and joule. We know that 1 kilowatt hour means 1 kilowatt multiplied with 1 hour. 1 kilowatt consists of 1000 watt and 1 hour consists of 3600 second. When you multiply 1000 into 3600, it will give 36 into 10 raised to 5 joule. That is also equal to 3.6 into 10 raised to 6 joule. So we can say that 1 kilowatt hour, that is equal to 3.6 into 10 raised to 6 joule. In examination, question can be asked, 1 kilowatt hour is equal to how much joule? The answer is 3.6 into 10 raised to 6 joule. Now our energy topic is complete. Soon I will upload video related with numerical problems of energy and power. Thank you very much.